कैटेगराइज किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए नॉलेज को, encyclopedia is for different knowledge को एक ही जगह इकट्ठा करके and then the knowledge would be there. So encyclopedia specifically refute करेगा traditional knowledge, and that was previously provided by the church and the state. So in fact, the refutation of the traditional knowledge that was there. So Enlightenment thinkers उसको challenge करेंगे. And again, the major theme would be again the application of reason, empiricism, and rationalism in order to solve the problems, in order to understand the phenomena, problem क्या है, disease क्या है, diagnose करना, prescriptions करना, and then moving forward. So the process would be empiricism and rationalism and the scientific methodology. So again, similarly, guidance to provide is also arguing reason to apply scientific methodology, empiricism and rationalism. And so that we didn't have to know about the truth of something and we can solve problems. Or it was a guide. The guide rather than thoughts. Encyclopedia would be a contribution of knowledge, and that would lead towards the revolution aspect. And the French thinker थी, she was a philosopher, scientist, और ये physics and the mathematics Bible के बारे में लिखी, and how we can attain happiness, about human happiness कैसे attain की जा सकती है. And she would also translate Newton's work in French language. So क्योंकि एक normally एक person जैसे statement थी, the French philosophers के बारे में लिखे, तो जब French philosophers की बात करेगा, then you have to write Dennis Diderot, Albert, J.K. and then Voltaire. फिर उसमें आप डेविड ह्यूम स्कॉटिश फिलोसोफर नहीं लिख सकेंगे. न्यूटन इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, तो फिर वहाँ पे हमें कंफाइन करना पड़ेगा कि क्या लिखना है यहाँ. Basic starts mathematics, French mathematician, French philosopher. I think therefore I am. तो आपने फिर French philosophers को differentiate करवाना होगा British philosophers. और British का लिखना है तो we can write a short note on that and move forward. तो थोड़ा सा उसको differentiation से हमें सर अदरवाइज अगर वो कहता है कि प्रिकर्सर क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो फिर उसको ब्रिटिश और ये सारे लेके आने. अगर वो ये कहता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मेन जो प्रिकर्सर थे, तो फिर इसमें ये फिर डेविड ह्यूम फिर हम सारे देखेंगे. जब वो जर्नलिंग एनालिटिकल थिंकर्स की बात कर रहे थे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर थिंकर्स. अगर वो कंफाइन करे सिर्फ फ्रेंच फिलोसोफर को करे, तो फिर आई थिंक वी शुड कंफाइन जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखना पड़ेगा. ऑल्दो वी कैन मैनिपुलेट कि ब्रिटिश एनलाइटनमेंट की या फिलोसोफर्स की मेजर आइडियाज की छोटा सा पैराग्राफ लिख, लेकिन डिटेल में नहीं लिख सकेंगे उसको, मेजर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे. तो क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या नेचर है, उसके थ्रू फिर हम कुछ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे. एंड देन सो एनलाइटनमेंट ने चैलेंज किया ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड देन दे वर आल्सो चैलेंज द इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी. Economic order of that, not rules, practices and institutions and policies of that period. Enlightenment thinkers, economic sense में उस वक्त की जो economic policy थी, जो rules थे, जो economic institutions थे, उसको भी challenge करें. And one of them was Adam Smith, classical economics, the father of economics. Wealth of Nations book लिखेंगे, उसमें वो उस वक्त की जो माशी policies थी, उसको challenge करें. So we would challenge the existing economic rules and practices and policies of that time period. And that was, he was basically challenging mercantilism, mercantilism, political economy में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में. And then in economics, he was studying about mercantilism, mercantilism. And we need to know the word is mercantilist philosophy या falsafa, ये school of thought. It's a lens, it's a school of thought, it's a lens. ये फिर डाइव करेगा स्टेट को कि आपने किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई. So what are the limited resources in the world? States with limited resources पे compete करेंगे, जो कि real estate की जाती है. So mercantilists भी यही कहते हैं कि limited resources हैं, वो limited resources पे states compete करती हैं. और state को चाहिए कि वो wealth maximize करे. So wealth maximization जो है वो goal होना चाहिए state का. So the end goal is, the end point is to achieve state security. This similar realism की जो theory है, कि national system
या दुनिया जो है वो एनार्की है, उसमें कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टेट कम्पीट करेगी और रियासत को क्या करना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइज करे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पे जाए, और जिसमें फर्दर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज की जाए, इंपोर्ट्स पर्टिकुलरली लग्जरी जो गुड्स है उसको आप बैन करें, डिक्रीज करें। कैसे डिक्रीज किया जा सकता है इंपोर्ट्स को, थ्रू टैरिफ, जो कि टैक्स है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड कस्टम ड्यूटीज, थ्रू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। स्टेट क्या करेगी, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेंगे जिसमें टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स कस्टम ड्यूटीज के थ्रू इंपोर्ट्स को कर्टेल करेगी, पर्टिकुलरली लग्जरी गुड्स। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें, इंपोर्ट्स को कर्टेल करें थ्रू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, एंड दे आर इन फेवर ऑफ सरप्लस करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट जो आपका बैलेंस, आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो आपकी इंपोर्ट्स का, so they are in favor of a surplus current account balance. Exports ज्यादा हो, imports कम हो। Limited resources पे state compete करें, international system which is anarchy, anarchic system के अंदर states limited resources पे compete करें, state wealth maximization पे जाए, exports increase करें, exports को curtail करें, state market पे intervene करके protectionist measures के through जो है वो tariff non tariff barriers लगा के imports को confine करें, state market में intervene करें for human development, education, infrastructure के development में involve हो। So market intervention of the government is important for mechanical sectors. Human development, infrastructure and education. इन तीन aspects में रियासत मुदाखलत करे और expenditures जो है वो करे। So that is mercantilism, and then Great Britain, हम जो time period वाले 1780s, revolutionary time period, British जो गवर्नमेंट थी वो mercantilist स्कूल ऑफ थॉट की जो पॉलिसीज है इसको फॉलो कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और mercantilist ने क्या किया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे रियासत जाए। तो कैसे जाए, मैंने कहा चाहे यूज ऑफ फोर्स भी क्यों ना करनी पड़े, रियासत वो भी करे, वो जस्टिफाइड है लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइज करे। तो जब रियासत स्टेट, इट कैन बी एनी कैन फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, सो स्टेट को ये स्कूल ऑफ थॉट क्या करे, गाइड कर रहा है कि पॉलिसी मेकिंग कैसे की जाए, वेल्थ मैक्सिमाइज की जाए, इज व्हाट mercantilists are arguing, स्टेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे जाए और उसके लिए रियासत को चाहे ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़े किसी और रियासत के अंदर, तो वो करे। It's just wealth maximization होनी चाहिए। So mercantilists ने क्या किया, colonialism का जो प्रोसेस है जिसमें स्टेट A स्टेट B के इंटरनल डायनामिक्स में यूज ऑफ फोर्स करके उसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो mercantilist स्कूल ऑफ थॉट ने इन पॉलिसीज को जस्टिफाई किया। ये ठीक। So enlightenment thinkers में, particularly Adam Smith and later on other economic thinkers, they would criticize that. Particularly ये जो use of force through wealth maximization. So British was doing that. India के अंदर यही किया है, they intervened and used force, and when India became the colony, the continent became the colony. So Smith criticized that. And they are not in favor of free trade economy, free market economy के हाथ में नहीं है, imports को curtail करेंगे तो free market economy तो नहीं होगी। And then Smith came, another British Scottish philosopher, and he wrote Wealth of Nations, and he argued नहीं, state limited interference of the government in market affairs होनी चाहिए। mercantilism में रियासत intervene किया, Adam Smith ने कहा कि limited interference होनी चाहिए market affairs में। Number one, the starting point of Smith's ideas, number one was human beings are rational actors, और rational actors rational economic decisions करेंगे। अकल रखता है इंसान, rational है, वो rational फैसले करेगा अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर। इंसान जब अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा, इकोनॉमिकली रैशनल फैसले करेगा, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जाएगा। तो इंसान को अलाउ किया जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अलाउ किया जाए, उसको राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया जाए। So human beings are rational actors, and they would make rational economic decisions, and they would enhance their wealth and resources, and states should let it happen. रियासत अलाउ करे। Limited interference of the government in market affairs. और market के जो invisible hands हैं, supply and demand, unforeseen forces जो हैं, वो जितने भी market के अंदर resources हैं उनको optimally allocate करें। Optimal allocation of scarce resources by the invisible hands of the market forces, supply and demand, और वो prices को equilibrium में ले आएगी, जो भी resources हैं उसको efficiently allocate किया जाएगा जिससे economic development होगी।
और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कहीं पे भी तो वहां पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी. So private human beings are rational actors, they are rational decision makers, and they should be allowed to extract maximum profits from the markets, and state should not interfere in the market affairs. Very limited interference. Free market economy हो, trade is not a zero sum game. ये तजारत जब की जाती है अगर मुझे उसका फायदा तो आपको भी उसका फायदा होगा. इसमें ये नहीं है कि मुझे ही फायदा आपको भी फायदा है. CPEC Pakistan China is not a zero sum game. ये सारा China से फायदा उठा रहे हैं. CPEC से हमें भी तो कुछ फायदा होगा. Relativity है उनको ज़्यादा होगा हमें कम होगा, but still mutual gains होंगे उसके अंदर. So trade is mutual gains. It's not a zero sum game. This is what we argue. Open market हो, mutual gains होंगे, trade हो, prosperity हो, free market economy. That is a fair economy. Where is Adam ये है liberal philosophy के economic aspects. Liberal theory, liberalism का जब हम फलसफा पढ़ते हैं, liberalism के बारे में पढ़ते हैं. So the economic system as capitalism. Capitalism is what is an economic system. और इसमें क्या है कि resources कैसे allocate किया जा रहा है, स्टेट का मार्केट में डिलीवर किया जाए नहीं किया जाना चाहिए, क्या बुरा यूँ होता है. So economic system of liberalism capitalism सरमाया लगाना निज़ाम इसमें इंसान को private properties, market में maximum benefits extracted and limited interference of the government in market affairs. Market की invisible forces, scarce resources को optimally allocate करेंगे जिससे development होगी, economic development होगी, peace होगा, justice हो, and the prosperity will be here. And they believe in a linear progress in human history. Human history means human society. Human society में linear progress है. एक step के बाद एक forward-looking progress है. Cyclic progress नहीं होगी. So liberals economically talk about capitalism, which is economic system. Liberals का जो माशी निज़ाम है उसको हम सरमाया लगाना निज़ाम कहते हैं capitalism. So that is the beginning of liberal philosophy. देखिए वो जो forces of continuity थी मैंने कहा था कि हम इन सब की बात करेंगे classical liberals and progressive liberals and new liberals and the nationalism. तो the beginning is the base is now on making. तो इन्हीं concepts को आज तो just beginning है हम further develop करते जाएंगे जो non social sciences के students हैं engineer doctors वो भी I try कि उनको भी ऐसा हो कि ये कैसा. I'm starting from scratch at a very low pace, and then eventually we'll be building these concepts in a far better manner in coming lectures. Develop further किए जाएंगे ये concepts. So अभी तो just it's the beginning point. Like 2 points हमने पहले 2 points किए, third one is like going forward. So this is how Adam Smith, the founder of classical economics, he would challenge the mechanical school of thought, the economic order of that time period. And the term order is the economic rules and practices and institutions of that time. So Smith and Wealth of Nations will argue the Catholic school of thought could challenge kiya, condemn kiya, and he would basically write about the beginning of this system, which is a liberal capitalist economic system. So that was the beginning of this idea. And the last point is economics pre-rational laws. जो ऑपरेट करती है नोबल लॉज हैं और फिर हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं सो वी कैन लॉज. So this is how Enlightenment philosophers challenged the religious order of that time period, they challenged the economic order of that time period, and now they are going to challenge the political ideas, the political order of that time period, critique of the political order, the political rules and regulations and institutions of that time period. So now they are going to challenge the political order. So Enlightenment was against it, condemning tyranny. Tyranny was arbitrary rule of a monarch who was indifferent to the welfare of the people and the subjects. Tyranny क्या है? ऐसी हुकूमत है जिसमें जो बादशाह है, monarch है, वो अपने जो subjects हैं, जो लोग हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करता, indifferent है. उसके लिए कोई इक़दाम नहीं उठाता, उसने कहा ये tyranny है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सियासी निज़ाम तो अच्छा नहीं है, इसमें बादशाह लोगों की welfare के लिए काम नहीं करता. So morality थी ये violence state involved थी जिसके अंदर उसको condemn करेंगे, monarchs की selfishness को condemn करेंगे, and they argued कि अच्छा monarch वो है जो आइन के मुताबिक हुकूमत करे, कुछ कानून हो, कोई structure हो, rules and regulations को उसके मुताबिक होता, अपनी ताकत को express करे, उसको utilize करे, और एक तरह की parliament हो, lower house हो जिसको लोग elect करे, तो बादशाह जो है वो आइन के मुताबिक हुकूमत करे तो ये अच्छी हुकूमत
So United Thinkers were in favor of a constitutional monarchy. एक है absolutist monarchy, and another is a constitutional monarchy. Absolutist monarchy, monarch absolute powers है उसके पास. Whatever I say is a law. Louis XIV. बादशाह कहते थे जो मैंने कह दी वो करनी है. And they used to do whatever they want. जितना टैक्स लेंगे, किसको पकड़ना है, अरेस्ट करेंगे, मारना है, मार देंगे. There wasn't any constitution. कोई framework नहीं था जिसके मुताबिक हुकूमत क्या करते थे. So things are tyranny. आप किसी को structure तो हो ना जिसके मुताबिक हुकूमत करें. So United thinkers were in favor of constitutional monarchy. The institution of monarchy, they kept the institution of monarchy there. यानी monarchy का ज़्यादा अभी भी उसको keep रखा गया, लेकिन constitutional monarchy की बात की. They didn't talk about republic. Although I think करेंगे republic is people's government. लोगों की हुकूमत is republic. But the monarch would be there. लेकिन हाँ चलें जी आप आइन के मुताबिक करने आप ही बादशाह हैं, लेकिन किसी structure के थोड़ा बादशाह हैं. Otherwise, the tyranny. Ordinary, the way the constitutional monarchy. And then the prominent leaders in the field was Hobbes, and then John. Social contract thinkers, critical science के अंदर ये सारे thinkers, modern philosophers पढ़ाए जाते हैं. यूरोपियन हिस्ट्री में हमसे ये नहीं पूछा गया, इनके फलसफे डिटेल में नहीं आएंगे कि जॉन लॉक के 20 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे या हॉब्स के ऊपर या नाइनटीन ऐसा नहीं आएगा. तो ना हमने पढ़े उसके ऊपर बेसिक्स फ्रेंच फिलोसोफर्स के इन्फ्लुएंस के बारे में. So Hobbes, social contract theorist, the modern social contract theorist, in 1651, in 1651 he wrote Leviathan, this monster, and he would come up with social contract theory. और वो beginning करता है social contract की modern philosophy के अंदर. और वो रियासत की concept की जो चेंज करते हैं वो कहते हैं the king is king not because God made him the king, but it's the people who are social. That is the beginning of the social contract of Hobbes. Hobbes ताकि एक मजबूत बादशाह की बात करेगा. सी मॉन्स्टर होगा उसके लिए. वो जो लेवाइथन है वो सी मॉन्स्टर है, मजबूत किस्म का बादशाह की आदमी का. हम उसको जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाने लगते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं थॉमस हॉब्स. तो हॉब्स की contributions क्या? Why we study Hobbes because he was the first who argued the king is the king not because God made him the king, it's the people who are the source of power. And that is the concept of a popular sovereignty. Sovereignty. हमको पाकिस्तान स्टडीज में भी पढ़ते हैं. Essence of power is Allah. ये जो source of power है अल्लाह के पास है इंसानों में. Popular sovereignty, the difference is popular sovereignty, it's the people who are source of power. हम पाकिस्तान स्टडीज या थियोलॉजी या रिलीजन को नहीं लेके आगे. Western political liberal philosophy के अंदर is a popular sovereignty. It's the people who are source of power. लोग हैं source of power. Essence of power is the people. फिर लोग अपने ही माशरे में से अपने में से किसी चंद एक को या अफ्यू को या जिसको दिल करेगा उनका वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के असेंबलीज में भेज देंगे ताकि वो उनके बुनियादी हकूक़ का and that is the process of a social contract. Social contract, social society के लोग contract करते हैं and the contract would be कि हम अपने में से किसी एक को अपना CR बना दें, class representative बना दें. But who is going to make? कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे. G10 में से हम लोग सबसे मिलकर डिसाइड किया Asad Umar became the MNA of it. तो माशरे के लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हल्का है उस हल्के के लोग हैं एसेंस ऑफ पावर. यानी असद उमर को असली में किसने भेजा? The people were living in G10 and the surrounding areas. So it's the people of this particular territory. So its source of power is the people. लोग हैं source of power. फिर लोग उस ताकत को इस्तेमाल करेंगे और अपनी consent के थ्रू. और consent कैसे लेंगे? इलेक्शन के थ्रू. आप इलेक्शंस में गए, आपने रिटन कॉन्सेंट ली कि असद उमर जो है इसको हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना. It's the people who are source of power, and then through their consent they transfer that power to a few, and the purpose of that transfer is to protect the fundamental rights of the people, and that are life, liberty, and property.
इंसान के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम सब ने अपने ही में से किसी एक शख्स को अपना हुक्मरान बना के असम्बलीज़ में भेज दिया ताकि वो हमारे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। That is the process of a social contract. So source of power is the people. और फिर वो अपनी consent के थ्रू अपने में से ही किसी एक को, चंद लोगों को, a few को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के असम्बलीज़ में भेज देते। The rule of the people, by the people and for the people. That is the real democracy. It's rule of the हमारी हुकूमत है। हमने ही भेजा ना, हम ना चाहते हैं तो हम उसको चाहेंगे उसको भी भेज देंगे। So it's the source हम हैं। PTI की पावर में आना है या PDM अगर अभी आ गई है, again सिर्फ PDM को भी तो वोट दिए लोगों ने। So it's the source of power is the people. That is the popular society. That is the beginning of Hobbesian ideas. And then John Locke would be the major thinker in following years after Hobbes. British philosopher, Buddhist philosopher, and he was again the beginning point is rejection of a divine right theory. जो कि सर रॉबर्ट फिल्मर ने थी, divine right theory. The king is the king because God made him. Locke said no. The king is the king not because God made him the king. It's the people who are source of power. सबसे पहले it's the people, popular sovereignty. Locke है source of power. First step. फिर वो अपनी consent से अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में से अपने ही उस लोगों में से किसी एक को अपना नुमाइंदा बनाकर असम्बलीज़ में भेजेंगे। That is how वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अपनी कॉन्सेंट देंगे, अपने में से ही किसी एक को अपना नुमाइंदा बना के भेजेंगे as their sacred representative कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। So that is how ट्रिब्यूटरीज को लिखे गए स्कूल के अंदर एक आर्ग्यू अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। It's the people who are source of power. लोग अपने में से ही किसी एक शख्स को अपना नुमाइंदा बना के असम्बलीज़ में भेजेंगे। So he's talking about representative government and limited government. Limited government की बात की जाएगी by writers and thinkers. And here सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे political science के तो differentiate. State is population, territory, sovereignty and government. ये है elements of state. Elements of state: people, territory, sovereignty and government. Its government के the pillars are legislature, executive, judiciary, and fourth is a media. अगर आप इसको देखें, these are the pillars of governments. फिर बाद में इसको जो है मैं I not differentiate among these concepts. Hopefully ये आपने सब कर लिया होंगे. People, territory, sovereignty, government. ये state elements and the pillars of the government, legislature, executive and judiciary. ये है रियासत के तीन pillars. So social contract में क्या बात की जा रही है? Limited government हो. Limited government, separation of power. Separation of power among what? Among pillars of the government. Separation of power. Legislature, executive, judiciary के जो rights and obligations हैं वो different होने चाहिए. Legislature law making करेगी, बजट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, एग्जीक्यूटिव का मनी पे अमल करवाएगी, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड लॉ मेकिंग के ऊपर जाएगी, और इसी तरह से सैंक्शंस भी जो है वो जुडिशियल। सो सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास लॉ मेकिंग के इख्तियार भी हो, या सजा जजा का तो इन आपकी एग्जीक्यूटिव का है। पाकिस्तान में हमारी एग्जीक्यूटिव होती है तो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट या एफआईए या जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एग्जीक्यूटिव में कानून पे अमल दरामद करवाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार नहीं होने चाहिए कि वो ये डिटरमाइन करें कि एक शख्स उसने जुर्म किया है या नहीं किया और उसको वही सजा भी दे, जो कि ये कर देते। जैसे वो साहिवाल इंसिडेंट था, तो उन्होंने कहा वो गाड़ी जा रही थी उसमें टायर एक्सीडेंट, हमने फायर बोला बंदे मार के पूरी फैमिली जो किलिंग जो भी किया गया था, तो एग्जीक्यूटिव ने खुद ही डिटरमाइन कर दिया जिसमें दहशतगर्द थे और उसने उनको सजा भी दे दी। ये इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। अगर वो दहशतगर्द थे या नहीं थे उनको जुडिशरी में लेके आए, पेश करें, जुडिशरी ये डिटरमाइन करेगी कि वो दहशतगर्द थे या नहीं थे, वो सजा या सजा देगी। तो क्या किया? सेपरेशन ऑफ पावर हो। तो Locke was in favor of a separation of power, judiciary, particularly legislature and executive, ये जो पहले दो institutions, उसने कहा कि दोनों के powers में separation होनी चाहिए।
And then Montesquieu came and he said judicial powers be separate from each other. So separation of power is associated with Montesquieu. Spirit of laws ने लिखी, लेकिन उससे पहले Locke was in the fear of legislation executive के इख्तियारात में जो है वो तकसीम हो, and then Montesquieu came and he said judiciary. Separation of power के concept से emerged. So popular sovereignty takes the people who are source of power through their consent कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने में से ही चंद लोगों को अपना नुमाइंदा बना के असम्बलीज में भेजेंगे, जब वो भेज देंगे तो ये होते हैं इन फेवर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब ये सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो चेक एंड बैलेंस होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो जस्टिस होगा, और जहाँ जस्टिस होगा वहाँ पे प्रोस्पेरिटी। जब हमारी लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव को बुलाती है तो वो कहते हैं ओह आपने हमें कैसे बुलाया, ऐसा नहीं होता। सो ये दैट इज द पॉइंट। सो सेपरेशन ऑफ पावर, ये इदारे एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें ताकि कोई भी ताकत को अब्यूज ना करे, जो उनको हकूक की राइट्स दिए गए प्रॉपर्टी की उसको अब्यूज ना करे, और अगर वो करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। Separation of power leads towards check and balance, system of check and balance, and that leads to transparency, accountability. सर ये लिमिटेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर ये तो एक ही चीज़ है? नहीं, मैंने इसको स्किप किया। हाँ, मैं मूविंग टुवर्ड्स दैट। लिमिटेड गवर्नमेंट इज बिट डिफरेंट। मैंने जानबूझ के स्किप किया था, मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो सेपरेशन ऑफ पावर इन द लिमिटेड गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। वो क्या की स्टेटमेंट आ गई ग्रीन कलर में, गवर्न लाइटली। That is classical liberalism in terms of politics. ये चाहते थे कि जो रियासत है, स्टेट या गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, यानी कि रियासत का बुनियादी मकसद है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। दोज राइट्स आर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीन बुनियादी हकूक हैं इंसान के, इनका वो तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके अलावा रियासत को ये नहीं चाहिए कि वो सोशल वेलफेयर का रोल प्ले करे, वो अस्पताल बनाने के लिए और वो एजुकेशन गवर्न लाइटली गवर्न करे, इन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। दिस इज व्हाट इनिशियली आर्ग्यूड। लाइफ मेरी जिंदगी को खतरा है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मेरी जिंदगी को महफूज बनाए, और रियासत लाइफ को मेरी महफूज कैसे बना सकते हैं? थ्रू सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन दोगे, वो मेरी जिंदगी को महफूज बनाएंगे। लिबर्टीज, मैं फ्री हूँ, मैं जहाँ काम करना चाहता हूँ मैं जाऊँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ विदाउट किया जाए, तो रियासत ये इंश्योर करे। और फिर जो मेरी जो अदाद है, जो मेरा कारोबार है, मुझे जो है उसमें आज़ादी दी जाए, मैं कारोबार करूँ, मुनाफा कमाऊँ, अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, लिमिटेड गवर्न लाइटली। ये नहीं कि रियासत ये चाहे कि आपने इस स्कूल में जाना है, फिर इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, आपकी तनख्वाह ये होगी और फिर आप रियासत को सर्व करेंगे। कुछ मुल्कों में ऐसे भी होते हैं, यूनिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पे ये बताया जाता है, या नाज़ी जर्मनी हो, फाशिस्ट इटली हो, वहाँ हुकूमत इन सारे मैटर्स में इन्वॉल्व हो। Limited, govern lightly, and then they would be moving towards devolution of power as well. Federal government, provincial government, local government, devolve करो ताकत को, इख्तियारात को नीचे की हद तक मुंतकिल करो। Concentration of parties towards authority. And authority leads towards corruption, and absolute authority leads towards absolute corruption. तो ताकत को तकसीम करो। हमारे यहाँ क्या किया जाता है? Military dictatorships, authority. Concentration of power. या अगर हमारी so called democratic parties भी हो तो वो क्या करती है? वो भी फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तरह काम कर देती है। लोकल गवर्नमेंट को तो वो कुछ देती नहीं। नो लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जो भी हो, लोकल ग्रास रूट लेवल पे ताकत डिवॉल्व नहीं की जाए। अगर की जाए तो नीचे जो मसाइल है लोगों को वहाँ फंड दिए जाए तो मसला हो जाए। कंसंट्रेट करते हैं पैसा, 8-6 मिनिस्ट्री शिवाजी ने अपने पास रखी। उस्मान गुज़ार को लगा के फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाई है, और लोकल गवर्नमेंट कहाँ क्या था कि लेके आएंगे, कहाँ से इलेक्शंस वो लोकल गवर्नमेंट ने बना भी नहीं, उनको यूजलेस कर देते, इख्तियारात के रिसोर्सेज नहीं। गवर्नमेंट लाइटली, सेपरेशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये क्या किया जा रहा है? बेसिकली ये लॉ मेकिंग की जा रही है, यानी ये रियासत के सियासी इदारे किस तरह के होने चाहिए, उनके कवानीन बनाए जा रहे हैं ताकि हम बेहतर जिंदगी, बेहतर माशरे में रह सके, एक बेहतर सियासी इदारा बन सके। और वो कैसे होगा? सेपरेशन ऑफ पावर हो,
devolution of power to accountability हो, इस through we can make a particular point. फैजल को उसने कहा tolerate करो. And then he argued, all human beings are born blank slates. Tabula rasa, blank slates. जब इंसान पैदा होता है तो वो blank है. तो अगर वो blank है तो वो how he would learn. सीखेगा कैसे? Experiences. This is empiricism. Locke is empiricism. Any experiences, say, this social institution, state school, family as a social institution, peer group, media, school, education system, media, ये सारे institutions हैं. Interaction gets through. We come to know about the reality of our society, even the Lamna sciences. So through experiences, sense experience, empiricism. Locke was empiricist. Senses get through. We come to know about the reality of anything. But then, if we talk about Plato, if we talk about Immanuel Kant, or any Descartes, no. It's human beings are essence of knowing. इंसान के दिमाग में वो बॉक्सेस बना लिए गए हैं जो आपको इस सेंस एक्सपीरियंस को अलग-अलग बाइनरीज में डिवाइड करते हैं. इंसान के अंदर ही बॉक्सेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. Through that we come to know about the reality of something. तो empiricists ये कहते हैं कि हम अपने सेंस जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अपने माशरे से सीखते हैं. Rationalists कहते हैं innate ideas. Innate ideas. By birth we have certain ideas. We can differentiate between good and bad. Can't we? अच्छी चीज बुरी चीज पे we can differentiate. Concept of a God, rationalists कहते हैं exist करते. Concept of a morality, ये innate ideas. By birth हम कुछ ख्यालात लेके आते हैं. हमारा दिमाग जो मशीन है उसके लिए कुछ ना कुछ तो है. So फर्क क्या है rationalism और empiricism में? Rationalism के लिए innate ideas. By birth हमारे अंदर ideas हैं. हम selfish by birth पैदा होते हैं तो हमें अपनी जो कैसे requirements हैं वो चाहिए आप बाकी जो मर्जी. So innate ideas and selfishness हमारी बुनियाद को पूरी करने के लिए वो by birth इंसान की वो है एक trait, innate idea हमारे अंदर ही है. So innate ideas exist करते हैं rationalists कहते हैं. John Locke, blank, Casablanca, blank sheet. Rationalism is deduction, deduce करते हैं. And empiricism is induction. And so science experience we got to know. Locke was an empiricist thinker and then he said tabula rasa कि हम जब पैदा होते हैं तो ना हम क्रिश्चियन होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना जीव होते हैं, ना सिख होते हैं. हमारे इदारे फैमिली इंस्टीट्यूशंस मींस इदारे हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशंस हमारे इदारे हमें मुसलमान, सिख, जीव, क्रिश्चियन बनाते हैं. वो हमें आइडेंटिटी देते हैं, शनाख्त देते हैं, मजहबी शनाख्त देते हैं. हमारी नाम की शनाख्त नेम जो है उसमें किया था आइडेंटिटी शनाख्त का कॉन्सेप्ट. सो सोशल इंस्टीट्यूशंस फैमिली आपको आपकी मजहबी आइडेंटिटी और आपका जो नाम है वो दे देती है. ये आइडेंटिटीज आपको दे दी जाती है. एंड देन 5 to 6 months फिर आप एक अपनी शनाख्त खुद से करना शुरू कर देंगे. That is mirror stage. Lacan psychoanalyst thinker है. Second thought parts में psychoanalysis के अंदर लिखा mirror stage. 4-5 माह का बच्चा उसको शीशे के सामने खड़ा कर दे. Then he will realize कि he is different from his mother. यानी 1-2 महीने के बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो अपनी माँ से अलग है. He thinks she can think they are the same thing. बल्कि पूरी कायनात सब कुछ मैं ही मैं everything belongs to me. वो मिरर एक्सपीरियंस पर उसको लगता है कि ओह ये क्या, ये कौन है? I am different than my mother. डिटैचमेंट का प्रोसेस है जिसमें कि वो कंस्ट्रक्ट करती है कि मैं एज अ गर्ल एज अ बॉय कि मैं अपनी मदर से डिफरेंट हूँ. I am different than her. And through that mirror stage, you construct your identity that you are something else than your mother. और जब आप अपनी माँ से डिटैच होते हैं, that is a very complex process.
डिटैचमेंट है कि हो ये क्या, ये तो मैं नहीं हूँ. You become a subject, separate from your mother. That is how you construct your identity in 5-6 months. You know, I'm different than my mother. Detachment state, that is mirror state of Lacan, and through which you develop your identity that I'm different than from my mother. I'm a separate subject. And then your identity, के जो बाकी points है, that is given by your family. मैं मुसलमान हूँ, and then मेरा नाम जो है वो ये है. So this is how construction of identities की जाती है, and we are moving forward. So Locke, human beings, blank slates हैं, उसके institutions, family हो या मजहब हो, उसको अच्छा या बुरा इंसान बना. इसी हद तक हम कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो reflect करते हैं अपने parents को. 60-70% they are the reflection of their parents. जब हम देखते हैं एग्जाम साइकोलॉजी के अंदर 60-70% we are the reflections of our parents. बहुत ज़्यादा traits हमारी even the way we behave ढेर सारे parts करें. So Locke, rejection of a divine right theory, social contract, theory of a concept of a popular sovereignty, and through which they created state as a political institution. Locke and Rousseau, he was another critical theorist. He would also talk about social contract, and he would argue it's the people who are source of power, popular sovereignty, and then he was in a favor of a direct democracy, a republic. The concept of a republic is it's the people's government, लोगों की हुकूमत, हम सबकी हुकूमत is a republic. Locke ने क्या किया? Locke talks about indirect democracy or representative democracy. Rousseau said no, ऐसा नहीं है. Locke ने कहा कि हम अपने ही माशरे में से चंद लोगों को अपना नुमाइंदा बना के असेंबलीज में भेज दें ताकि वो हमारे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें. नई पिंडी के लोगों ने शेख रशीद को अपना नुमाइंदा बना के असेंबली में भेज दिया कि वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें. Rousseau ने कहा उन्होंने ये क्या कह दिया? शेख रशीद को आपने भेज दिया, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा. He is not going to represent you. आप खुद उसका प्रोसेस का हिस्सा बने. That is direct democracy. Athenians' democracy was a direct democracy. So Rousseau was in a favor of a direct democracy. In favor of like the Athenians' democracy was here. And he said it's the people's government. हम सब की हुकूमत हो, हम सब law making के अंदर involved. That is Rousseau's concept of a general will, the will of majority. हम सब की हुकूमत जब राज करेगी खल के खुदा, हम देखेंगे लाजिम है, हम भी देखेंगे. That is how जब हम सब मिलकर हुकूमत करेंगे, हम सब की हुकूमत करेंगे. खल के खुदा जो है जब राज करेगी खल के खुदा, the rule of the people, people's government. That is Rousseau's republic. That is Rousseau's concept of a republic, the general will. हम सब की हुकूमत. This is what they're talking about. So नहीं है. आप अपने बिहाफ पे किसी को पावर ट्रांसफर कर रहे हो, आपके बिहाफ पे आप इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा. So he was against representative democracy या indirect democracy. Modern times में direct democracy with huge numbers is not possible. So इसलिए हम फिर representative indirect democracy की तरफ. Rousseau wanted कि जो रियासत हो वो less than 10,000 लोगों को वैकेंसीज मिले. यानी माशिक रियासत जो है less than 10,000 लोग हों, उसमें भी हम सब बैठिए हुकूमत करें. वहाँ तो पॉसिबिलिटी है जहाँ 220 million हो वहाँ हम सब मिलकर हुकूमत नहीं कर सकते. So that would be very difficult. So Rousseau was in a favor of a concept of a republic. He was not in a favor of a constitutional monarchy. He was in favor of a republic, which is the people's government. And he was in a favor of a political sovereignty, which is it's the people who are source of power. फिर लोग हुकूमत करेंगे, representative हुकूमत नहीं होनी चाहिए. आप किसी और को power transfer नहीं करेंगे. That was Rousseau's social contract. Man is born free and everywhere is in chains. पैदा हुआ equal freedom, जब वो society में आता है तो he's then chains. ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं चाहिए कि हमें political science की theories की डिटेल नहीं चाहिए philosophy के sense में, क्योंकि इसके ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन single handedly कभी नहीं आएगा. सारे thinkers पे आएगा. तो जितनी मैं करवा उतना ही दूंगा. इससे ज़्यादा डिटेल required नहीं है यहाँ पे. So Rousseau's concept, but we can simplify that here. यहाँ का then Montesquieu, he was there during the time period of Louis XIV, and then was from the nobility, and then he would condemn the religious order and institutions of that time period, and he would write Spirit of Laws and separation of power concept जो थे वो Rousseau के था. Montesquieu जो है उसको देखा.
And here we are going to talk about another concept, which is the concept of a state of nature. State of nature. State of nature. State of nature. Before the creation of state as a political entity, that society is known as state of nature. यानी रियासत के बनने से पहले, रियासत का एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनने से पहले क्या जो माशरा था उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेशन. Before the creation of a state as a political entity, that society is known as state of nature. जब इंसान दुनिया में आया तो रियासत तो नहीं बना दी थी उसने, डेमोक्रेसी बन गई, वो हम क्रिएट करेंगे, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन से हम इदारे बनाएंगे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी और प्रोसेस के थ्रू, बट वी विल क्रिएट दोस इंस्टीट्यूशंस. स्टेट ऑफ नेचर वो माशरा है जिसमें रियासत नहीं है, गवर्नमेंट स्टेट नहीं है. स्टेट ऑफ नेशन में गवर्नमेंट नहीं है, हुकूमत नहीं है, वी ऑल आर इक्वल. हुकूमत जब रियासत बन जाती है तो फिर रियासत हम सब हाई रैंक्स ऑर्डर में चली जाती है, सुपीरियर हो जाती है, एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आ जाता है. ऑर्डरिंग प्रिंसिपल वुड बी एक हायरार्की बन जाती है कि हुकूमत के पास legitimate right है to use force. Monopoly of the use of the force is in the hands of the state. Max Weber. रियासत क्या है, उसके पास मोनोपोली है, ताकत इस्तेमाल वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. तो स्टेट फिर हमसे अब एक हायरार्की बन गई कि स्टेट आपसे अब है, नीचे है. State of nature में there wasn't any kind of a hierarchy. You all were equal and you are all free to do anything. स्टेट नहीं बनी, रियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, हम सब फ्री हैं, जैसे जिसका दिल करे करता है. हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत नहीं है तो लॉज नहीं होंगे. So state of nature, no concept of a state and government. Everyone was free and equal. Free है, equality है, and then there were limited resources in state of nature according to Hobbes. State of nature वो माशरा है जिसमें हुकूमत नहीं है, कानून नहीं है, सब इंसान बराबर है और वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं. जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे कम्पीट करते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं. उस लड़ाई को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए हॉब्स ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक बादशाह बना दो, एक ऑर्डरिंग मैकेनिज्म बना दो, एक स्ट्रक्चर बना दो, बादशाह जो है आपकी जो लड़ाइयां उनको खत्म करवा दो. दिस इज हाउ स्टेट केम एज अ पॉलिटिकल एंटिटी. और स्टेट ऑफ नेचर वाज there was governing law नहीं है, रियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, everyone is a free, equality थी, liberty, equality, no laws, no government, no state, you can do whatever you want. But it was a war of all against all. This is classical realism of Thomas Hobbes. जब Hobbes हम classical realism की थ्योरी में बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान, then first he talks about human nature. इंसान selfish है, bullish है, violent है, point one. फिर वो इंसान की फितरत को ह्यूमन नेचर में देखते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत को वो फिर स्टेट ऑफ नेचर में उसको पोर्ट करते हैं कि ये स्टेट ऑफ नेचर है जिसमें सब इंसान बराबर है, फ्री है, उसमें कोई कवानीन नहीं है, उसमें कोई हुकूमत नहीं है. तो इंसान क्योंकि सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता, तो लिमिटेड रिसोर्सेज पे वो कम्पीट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं. एंड देयर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, क्लासिकल रियलिज्म. जब हॉब्स से बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर इज इविल, नास्टी, ब्रोडिश, एंड देयर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इन व्हाट? In state of nature. Before state came into existence, state of nature में basically हर शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ जो था he would have war. उस war of all against all से कैसे निकला जाए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रियासत बनाई जाए, बादशाह बना दिया जाए, लिबाइथन बना दिया जाए, आप स्टेट ऑफ नेचर से निकल आएंगे, एंड देन सिक्योरिटी हो जाएगी. That is the concept of a state of nature. सर ये स्टेट ऑफ नेचर ओरिजिनली कॉन्सेप्ट थॉमस हॉब्स का. हॉब्स ने भी इस पे बात किया, लॉक ने भी किया, रूसो ने भी किया स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर, मार्क्स ने भी किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सब ने किया. इनकी स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट्स वेरी करते हैं, ह्यूमन नेचर के भी और स्टेट ऑफ नेचर के. जैसे अभी हमने हॉब्स की बात की, ह्यूमन नेचर की बात की, और हॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, ये बात कर ली हमने थॉमस हॉब्स ने. इक्वल डिनास्टी ब्रिटिश पॉइंट फॉर वॉर अगेंस्ट ऑल, ये हॉब्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर. लॉक का ये नहीं,
लोग इंसान नाइट गुड नाइट बैड, ना अच्छा है ना बुरा है, उसके माशरा उसके इंस्टीट्यूशन उसको अच्छा बुरा बनाते हैं. Blind slate. Socialization he would come to know. और state of nature का जो उसका कॉन्सेप्ट है उसमें ये नहीं है कि war of all against all नहीं है, लॉक किया state of nature क्या. तो कहते हैं कि नहीं इंसान rational है और वो कॉपरेट भी करते हैं. उसी स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के 3 बुनियादी हकूक भी हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. जिंदगी अल्लाह ताला ने दी, हम फ्री हैं और फिर हम कुछ ऑन करने का हक भी हमारे पास है रियासत के बनने से पहले. हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, इन सब के स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वेट करते हैं. फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिटेल्स जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है. इससे पहले भी प्लेटो वगैरह ने भी किया. एंशिएंट फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है. मॉडर्न फिलॉसफी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो इज नॉट द डोमेन. यूरोपियन हिस्ट्री तो अभी हिस्ट्री तो हमने स्टार्ट ही नहीं की, फिलॉसफी दैट वी कवरिंग. सो मूविंग टुवर्ड्स मॉन्टेस्क्यू. अब देखिए मॉन्टेस्क्यू की स्टेट ऑफ नेचर क्या है. मॉन्टेस्क्यू बिलीव दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल्स वर फेयरफुल, जैसे वो हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल्स फेयरफुल. They wanted कि war violence से निकाला जाए तो इसमें इंसान क्या करेगा, इंसान रियासत बनाएगा, सोसाइटी ऑफ स्टेट बनाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जब वो सोसाइटी ऑफ स्टेट बनाएगा तो फिर सोसाइटी ऑफ स्टेट बनने के बाद भी उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाएगा, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाएगी. इस सेकंड मेन पॉइंट है. As soon as man enters a state of society, यानी स्टेट ऑफ नेचर से जैसे ही इंसान स्टेट ऑफ सोसाइटी में एंटर हो जाते हैं तो वो फिर अपनी कमजोरी, अपनी इक्वालिटी सीज कर बैठते हैं. कि स्टेट ऑफ नेचर में वो बराबर थे. जब रियासत बना देगी तो रियासत आपसे सुपीरियर अथॉरिटी हो जाएगी, फिर आप जो बराबर नहीं है स्टेट से वो पास देंगे और फिर कंपटीशन स्टार्ट होगा. Then commences the state of war. State of war in the sense of a competition. इंडिविजुअल्स के दरमियान, रियासतों के दरमियान. तो हुकूमत को क्या चाहिए, लॉ मेकिंग करे वो लॉज के थ्रू इंश्योर करे पॉलिटिकल लिबर्टीज को, प्रॉपर्टी के राइट्स को, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इंश्योर करे. सर इसका स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर से. देख सकते हो मॉन्टेस्क्यू वुड आर्ग्यू कि वॉइड इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर. मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो अवॉइड करेंगे. अवॉइड इन ऑर्डर टू अचीव स्टेट ऑफ नेचर इज वॉइडेंस. उस पे इश्यूज हैं, उससे निकलने के लिए सजेशन होती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ. रूसोस वुड बी डिफरेंट. रूसो बिल्कुल उसको अलग करेगा, पर वो फिर पॉलिटिकल साइंस की डिटेल में हमें जाना पड़ेगा. बट सर हॉब्स तो ये कह रहा है ना कि वो अभी दे आर नाउ इन अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर. तो वो जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक स्टेट बनाएंगे तो तब वो उस वॉर से निकल जाएंगे. बट ये बोल रहा है कि अभी दे आर वेरी टिमिड, दे अवॉइड कि वॉर में जाइए, वायलेंट हो एक दूसरे के खिलाफ. तो जब वो स्टेट में जाएंगे तो तब जब वो स्टेट बना लेंगे तो उसके बाद जाकर वो एक स्टेट ऑफ वॉर में चले. और उसमें उनके दरमियान कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होगा एंड देन दे वुड बी competing with each other. सर इजंट इट ऑपोजिट? But still like they are fearful. Because I mean, taking state of nature, individuals were fearful, and they wanted to avoid violence and war because of limited resources के ऊपर clash probability of conflict है जिसको avoid करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत heavenly like situations. इस situation से निकलने के लिए इंसान state create करेगा and then the competition would be there. यानी वो जब वो state of war में enter होगा, माशरे में enter होने के बाद, रियासत बनाने के बाद, that is in a sense of a competition. जब उसमें एंटर हो जाएंगे फिर वो कम्पीट करेंगे तो रियासत क्या करेगी, रूल मेकिंग लॉज बनाए ताकि उसको बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ कर सके. And when he was against absolute monarchy, Montesquieu, he was in favor of a constitutional monarchy. Montesquieu constitutional monarchy के आगे में था. Hobbes was in favor of a strong monarch. Locke was in favor of a representative government, a rule of a few. जैसे बाइक साल में से rule of a few. 220 million 340 50 जो है वो rule of a few बनता है. So Hobbes strong है, single large, strong monarchy by John Locke, a rule of a few. Rousseau, the general and the rule of everyone. The republic, the people's government, सब जो है direct democracy. And Montesquieu was in favor of a constitutional monarchy. Voltaire would be in favor of a constitutional monarchy. This is how they do. And then
सेपरेशन ऑफ पार्ट के कॉन्सेप्ट जो उसको डेवलप करेंगे। फिर कुछ इनमें डिफरेंसेस थे। एनलाइटमेंट थिंकर्स के डेविड ह्यूम आर्ग्यू करेगा कि ह्यूमन माइंड जो है कैपेबल है knowing absolute reality, truths जानना जो है हमको majority would argue कि no, the truth exists. We can know about that. Reason we believe करेंगे Rousseau was in a favor of instincts. Voltaire was in a favor of Swan King. लेकिन वो डायरेक्ट आइडियल्स के बुनियाद पे हो। ये डेविड ह्यूम जो है, डेविड ह्यूम, हाँ डेविड ह्यूम, ये तो एनलाइटमेंट के इंडिविजुअलिज्म का आइडिया जो है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो इसको एनलाइटमेंट हम क्यों करते हैं? डेविड ह्यूम जो थे इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको तो कंफाइन करके चैलेंज करके नहीं करा, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं दिए जाना चाहिए। लेकिन डेविड ह्यूम जो एम्पिरिसिज्म के बिगिनिंग है वो डेविड ह्यूम का इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअलिज्म को एनलाइटमेंट का प्राइमरी डेफिनेशन नहीं, उस पे वो प्राइमरी नहीं है कि इंडिविजुअल राइट्स सबको दिए जाए। कुछ फिलोसोफर्स वुड बी इन फेवर कि इंडिविजुअल राइट्स दिए जाए, कुछ लेंगे नहीं सबको इंडिविजुअल राइट्स नहीं दिए जा सकते, कुछ उसको confine करेंगे राइट्स। So individualism is a major theme, but still few authors would argue, चंद philosophers उसको कहेंगे कि नहीं, इंसान को बुनियादी हकूक़ ये कॉमन ऑर्डिनरी लोगों को ये हकूक़ नहीं दिए जा सकते, वो उनको उन राइट्स को चैंपियन नहीं करेंगे। ह्यूम एम्पिरिसिज्म की जो बात करते हैं उस वजह से, फिर ह्यूम रिलीजियस ऑर्डर ऑफ दैट टाइम पीरियड को चैलेंज करेगा। और एनलाइटमेंट थिंकिंग या आइडियाज को जब ओवरऑल मूवमेंट में बढ़ते हैं, एनलाइटमेंट थिंकर्स ने क्या किया? They challenged the religious order of that time period and economic order and political order. ये उस वक्त का जो सियासी, मजहबी, माशरती या सोशल निज़ाम था उनको चैलेंज किया एनलाइटमेंट थिंकर्स। So he challenged the religious order, rules and practices, and he was that we can come to know about the truth through empiricism. But as far as individual rights was concerned, he was very cautious related to that. उसने confine किया कि नहीं ऑर्डिनरी लोगों को ज़्यादा रूल नहीं दिया। So as far as individualism was concerned, वहाँ पे उसकी कुछ divergences हैं बाकी thinkers। And then majority जो है वो openly monarchy को challenge नहीं करेगी। Majority would be in favor of a constitutional monarchy. So Rousseau was in a favor of a republic, ये concept। And so we covered enlightenment, जो major point था, and now we are going to differentiate between a couple of more concepts. One is Reformation. Reformation started in Germany, in Central German areas, Holy Roman Empire areas. 1517, Martin Luther theses लिखेंगे 95 theses। उस theses के थ्रू वो कैथोलिक चर्च की पॉलिसीज को कंडेम करें और वहाँ से क्रिश्चियनिटी स्प्लिट होगी into two denominations, Catholics and Protestants. So that is, Reformation is related to a religious movement. Reformation reform किया जाए कैथोलिक चर्च की practices। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैथोलिक चर्च की practices के लिए। So Reformation is about a religious revivalist movement जहाँ पे वो reform की बात करेंगे। That started in 1517 in Central Europe. So Reformation is about the religious movement. It's about religious movement where they would condemn the religious practices. And then there's a Renaissance, revivalist movement in Italy. Music, art, theater, humanism की बात की गई। Human इंसान, individual की बात। वो कहा जाएगा कि इंसान जो है वो खुद डिटरमाइन करेगा अपनी तकदीर को, अपने फैसले को, डिसीजन मेकिंग को। तो इंसान राष्ट्र है, वो अगर रखता है। So Renaissance started in Italy, Rome, और उसमें म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। ऑल्दो क्रिटिकल साइंस के लिए भी काम किया गया उसमें। प्रिंस मैकियावेली की जो है वो लिखी गई। So Renaissance started in Italy, 13th-14th century. So Italy is the center, and Renaissance is more related to culture, music, art, and that. And humanism is that later part. Reformation 1517 Germany onwards. और फिर Reformation की जो तहरीक थी वो फिर शेप करेगी, तब्दील करेगी यूरोपियन एक्शन को next 100 years. There will be 30 years war. 1618, 1648 अगर आप आयार की स्टूडेंट हैं तो फिर आप पढ़ ही होगा। 1648 में 48 to 30 years war हुई यूरोप के Protestants और Catholics के दरमियान। फिर 1640s के अंदर इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट होती है।
Stuart monarchy versus the Commonwealths. So इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट है, यूरोप 30 years war है, तो मजहब की बुनियाद पे ये बैटल्स थी, ये जंगें थी इनके दरमियान. Idea was in 1517 मार्टिन लूथर 95 thesis, इसमें वो कहेगा कि आप बाइबल को एक तो ट्रांसलेट करेगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कहेगा तो बाइबल आप खुद पढ़े, तो बजाय इसके कि प्रीस्ट के थ्रू आप गॉड से कम्युनिकेट करें, आप डायरेक्ट करें. इंटेलिजेंस की प्रैक्टिसेस उसको चैलेंज करेगा. स्प्लिट होगी क्रिश्चियनिटी. So Renaissance, the center is it. So 13th, 14th century movement, cultural revivalist movement, and then Reformation, the religious revivalist movement, and Enlightenment. Or Enlightenment, British Enlightenment era, which was Newton and then Francis Bacon and Newton, and then Scottish philosopher David Hume, a British philosopher, John Locke, Thomas Hobbes, a British philosophers. The 1600 निकले, 1650s में Hobbes निकला, 1660s में, 1688 के अंदर, 1680s के अंदर John Locke लिखेगा, and then Newton would be writing in a similar time period. So Newton, Locke, Hobbes, and before them Francis Bacon. तो ये British philosopher, ये British Enlightenment thinkers, and then the French Enlightenment thinkers. So Voltaire, Montesquieu, Denis Diderot, ये French thinkers. English Enlightenment इन्फ्लुएंस करेगी फ्रेंच इनलाइटनमेंट के ख्यालात को, और फिर फ्रेंच इनलाइटनमेंट के ख्यालात लोगों के सोचने के अंदाज को तब्दील करेगी, एंड देन द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस. सो एंड देन साइमल्टेनियसली देयर विल बी अनदर डेवलपमेंट, दैट इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो रेनेसांस, रेफॉर्मेशन, ब्रिटिश इनलाइटनमेंट, फ्रेंच इनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एंड देन द प्रिंटिंग ऑफ प्रेस. ये बड़े ideas थे, बड़ी movements थी जो eventually merge करेंगी and they would shape the modern world, particularly French Enlightenment and British Enlightenment. British Enlightenment तो पहले ही तब्दीली ले आएगी जॉन लॉक के बाद. 1680s के अंदर Glorious Revolution 88. Yeah, exactly 88. 1688 के अंदर the Glorious Revolution came in England. जिसमें इंग्लैंड मूव करेगा फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जॉन लॉक के आइडियाज, ट्रूटिटाइजर्स की किताब थी गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, दैट वुड बी देयर. ब्रिटिश लेजिस्लेशन बनेगी, अपर हाउस लोअर हाउस वुड बी देयर. लोअर हाउस पॉपुलरली इलेक्ट किया जाता है, लोग इलेक्ट करेंगे, अपर हाउस को बादशाह खुद करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स वुड बी देयर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, लेजिस्लेशन बाइकैमरल लेजिस्लेशन होगी, और बादशाह जो है मोनार्क जो है वो लोअर हाउस की कॉन्सेंट के थ्रू जो है वॉर पे वेज करनी है या टैक्सेस इंक्रीज करना है तो उनको कंसल्ट करेंगे. So this is what we covered. Renaissance, Reformation, Scientific Revolution, and the printing press, the British Enlightenment and French Enlightenment. Enlightenment is the age of reason, and the basic point is all human beings are born free and equal. Human beings possess the faculty of reason. And if we utilize our reason, our faculty of reasoning, then we can come to know about the truth of the natural world, the outer world, and ourselves, and the inner world, our society. We can know the reality of existence and the essence of these institutions. But we have to follow scientific methodology, and through rationalism, empiricism, and empiricism, we can come to know the reality of existence and objective truths. And if there exist natural laws in natural world, then we can also find natural laws in social affairs. And that we can also come to know through process of empiricism and rationalism, and then they challenged the existing religious order of that time, the Christian values, traditions, and practices and institutions. They challenged the political rules and regulations and practices and institutions of that time, economic rules and practices of that time period, and the society. That it's a decadent society. Gala sada hua Europe ka mashra hai. They would condemn those traditional social values, and they wanted to create a new world, the world of science, secularism, materialism, industrialization, nationalism, liberty, human individual liberty, freedom. And essence would be human rights. Human fundamental rights of the people would be the major essence of life. This is what we cover. Yeah. Any questions? Revise के लिए आज के slides. ये slides आपके पास आज आ जाएंगी. बना दें आप.
एंड देन स्लाइड्स। ये जहाँ से मैंने तैयार किया ऑब्वियसली आई हैव कुछ सोर्सेज से कंसल्ट किया होगा। एक बुक है इंसाइक्लोपीडिया शायद इसका नाम है, आई शेयर दैट बुक बाय क्रिस्टोफर बुक्स। उसका एक चैप्टर होगा इनलाइटनमेंट। आपने जस्ट वो चैप्टर पढ़ना है तो हार्डली 8 to 10 पेजेस का क्विक गो थ्रू दैट। जो स्लाइड्स है मेजॉरिटी वहाँ से देखी गई। एंड देन आई शेयर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज, इसमें रिनेसेंस, रिफॉर्मेशन, लॉक, हॉब्स, रूसोस के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एनलाइटनमेंट के ऊपर, जो मैं नहीं सही से समझा सका आप खुद से प्रेजेंट करेंगे, फिर जब पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो। फिर जो लर्निंग पूरी होगी। कहना है कि आपने स्लाइड्स पढ़नी है, जाके डिवाइस कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। डिवाइस स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्री सीखिए, क्विक गो थ्रू करें चैप्टर को, 1 घंटे में 2 में से ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर स्लाइड्स देखिए, जो कमिंग लेक्चर की स्लाइड्स ऑब्वियसली आई, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट करते तो रिपोर्टिंग की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीक बढ़ के आज। फिर इन क्लास में भी बेटर पोजीशन को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी। जब ये प्रोसेस कर देंगे देन ये टॉपिक जो है वो इट विल मेक सेंस। एंटायरली यहाँ पे नहीं होगा। When we talk about French philosophers, तो क्या हम उसमें जॉन लॉक का रेफरेंस देंगे बिकॉज़ English philosophers तो हम एज अ इन्फ्लुएंस डिस्कस करेंगे। फिर उसको आप इन्फ्लुएंस करेंगे। ये इंग्लिश एनलाइटनमेंट थी, इंग्लिश एनलाइटनमेंट के ये किर्सन के ये मेजर आएंगे। लेकिन हम डिटेल नहीं लिख सकते कि हम 3 पेज या 2.5 या 3 पेज ब्रिटिश इंग्लिश एनलाइटनमेंट के लिए। अगर वो क्वेश्चन है फ्रेंच एनलाइटनमेंट के फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर्स को डिस्कस करेंगे दैट हाउ डिड आइडियाज कंट्रीब्यूट टू रेवोल्यूशन, तो फिर फ्रेंच फिलोसोफर्स करेंगे। ब्रिटिश के ऊपर जस्ट हम हार्डली पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर डिटेल सर ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें क्या डिस्टिंक्शन है? कौन सा क्वेश्चन? सर ये वाला था कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन वाज इनडायरेक्टली पोस्ट। ये सब प्रीवियस ईयर। हाँ ये अपने ऐसे हम अपने एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन दे देंगे मुझे। प्रीवियस ईयर करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं अभी मैंने एप्लीकेशन की है। We just read the theory part। इसको हमने फ्रेंच माशरे के साथ और फ्रांस में जो इनकलाब है उसका लिंक नहीं किया। अभी जैसे आज हमने सिर्फ बुनियाद रखी है फलसफे की इन आइडियाज की। नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू लिंक देम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फिर फर्दर जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो उसमें आई बिगिन रिवर्टिंग बैक टुवर्ड्स लिबरल्स इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म की बात करते हैं, लिबरल्स पॉलिटिकली डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो उसकी बुनियाद आज मैंने गाइड कि कहाँ से ये आइडियाज हुए, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म क्या है। इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा हम पढ़ेंगे, इनको फर्दर बिल्ड करते जाएंगे इन कमिंग इंटायर लेक्चर्स और इसको फिर लिंक भी करेंगे ये क्वेश्चन है। एक कनेक्शन बिटवीन ये क्वेश्चन जो है 2016 में पहला क्वेश्चन जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव के बाद, द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर्स एंड द रेवोल्यूशन वाज इनडायरेक्ट एंड रिमोट। The philosophers didn't preach revolution, rather they undermined the faith of the people in the old order. क्या किया philosophers ने? They didn't preach revolution. इनमें से किसी philosopher ने ये भी नहीं कहा कि violence पे चले जाओ, लड़ो, बर्बादियां करो। Revolution is a violent change. Evolution is a gradual change. Violence की marks कोई नहीं है वैसे. Marx की revolutionary thinking नहीं है इसमें. So violence को preach किसी ने नहीं किया. And then इनके ख्यालात ने क्या किया? Undermined the faith of the people in the older order. Order का concept कि Enlightenment के ख्यालात ने क्या किया? लोगों का जो faith था उस वक्त के political rules of the games, institutions हो, economic हो, religious हो, इन rules of the games, institutions, norms को challenge किया कि the king is the king not because God made him the king. नहीं ऐसा नहीं होता. It's the people who are source of power. इन ख्यालात ने क्या किया? इनडायरेक्टली लोगों को जो उस वक्त का निज़ाम था, उस वक्त के जो कवानीन थे, जो प्रैक्टिसेस थी, इंस्टीट्यूशंस थे, उसको चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया, they would come up with new ideas and then they would be saying, it's the people of France. The power belongs to the people of France. It's the people of France who are going to determine who's going to become their ruler. And France would move from absolutist monarchy towards a constitutional monarchy and towards republic. Eventually, under the reign of terror, the French Republic. ठीक है, तो ये we will connect that in the language. We covered revise के maybe 60-70% समझ आ गई हो, rest of 30% के लिए आपको हो जाता है। फिर होगा, वरना एक तो मैं नहीं कर सकता।